बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है बेटे, हम पीरियड 3 एलिमेंट्स डिस्क्राइब कर रहे थे और उसमें हमने डिफरेंट कंपाउंड्स को डिस्क्राइब किया था। तो आज इंशाल्लाह हम इनके फर्दर जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। पीरियड 3 एलिमेंट्स, वी विल डिस्क्राइब दी हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स को हम डिस्क्राइब करेंगे जो पीरियड 3 बेसिकली एलिमेंट्स हैं, जिसमें पीरियड 3 एलिमेंट्स दैट इज़ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Now the hydroxides of sodium and magnesium, that is NaOH and MgOH whole twice. These are the hydroxides of sodium and magnesium. Both are basic in character due to O-2, due to OH negative ion, and react with dilute acid, that is HCl, to form respective salt and water. सोडियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये बेसिकली ये थर्ड, इसमें फर्स्ट टू जो हैं सोडियम एंड मैग्नीशियम विच बिलोंग टू दी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड विच आर बेसिक. सो दे रिएक्ट विद दी एसिड. सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl gives NaCl plus water. Similarly, magnesium hydroxide plus HCl gives MgCl2 plus water. So these are the salts, respective salts of the hydroxides of the sodium and magnesium. Now if we consider the hydroxides of that is NaOH, MgOH whole twice, AgOH thrice, SiOH 4. Now if we consider this one, these two are basic. This is amphoteric. The aluminium hydroxide acts as amphoteric oxide, that is basic as well as acidic. The amphoteric oxides, they behave as acid as well as a base. So they both react with acid and base. If they react with acid, so in fact they are behaving as a base, कि जब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एज ए बेस बिहेव कर रहे होंगे, और अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर. सो एम्फोटेरिक जो है ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी राइट द स्ट्रक्चर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl gives AlCl3 plus water. AlCl3 plus water. Now here it is behaving as a base. Similarly, aluminium hydroxide reacts with a base to form sodium alumino tetrahydroxy aluminate. Here the aluminium hydroxide is acting as an acid. So this can behave both as an acid as well as a base. Therefore, aluminium hydroxide being amphoteric, it will react with the base to form the sodium tetrahydroxoaluminate. When it acts as a base, it forms salt water. Again here the same cases. Now in other hydroxides, the OH is covalently bonded. For example, H4SiO4, H3PO4, H2SO4, HClO4. Now in this case, the silicon is covalently bonded with 4-salicylic acid, orthosilicic acid. In case of phosphorus, in this case, in case of sulfuric acid, and similarly in this case, the OH is covalently bonded. For example, in this case, orthosilicic acid, these all behaves as acids. H4SiO4 as weak acid,
HClO4 as strong acid. So these are in fact all acids affecting from the weak acid to the strongest acid. Again, this is a weak acid, this is also a weak acid, this is a strong acid, this is very strong acid. In this case, जैसे सिलिकॉन में जो सिलिसिलिक एसिड है, इसी तरह जो फास्फोरस में फास्फोरिक एसिड है, या सल्फ्यूरिक एसिड इन केस ऑफ सल्फर and perchloric acid. These are the strong, whereas the salicylic acid is very weak. This is simply weak acid. This is strong. This is very strong acid. Now this was all about that how we can describe the hydroxide of period 3 elements. Now we come to the next topic, that is group 1 elements. Group 1 elements. Now group 1A comprises of elements, that is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So if we write in the form of column, that is group 1A, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. The atomic number is 3, 11, 19, 37, 55 and 87. The general electron in configuration is ns1. ग्रुप 1 जो है, जिसको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, अल्कली मेटल्स भी इनको कहते हैं, और ग्रुप 1 में है, और इनका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है ये क्योंकि s ऑर्बिटल में होता है, इसलिए हम इनको SN1 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन भी कह सकते हैं। तो इस लिहाज से इसमें जो बेसिकली इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 4s1 1s2 5s1 1s2 6s1 1s2 7s1. So if we write the electronic configuration of group 1, then the valence shell comprises 1 electron. So generally they are ns1. So there is 1 electron in the valence shell. So we can describe alkali metals in the terms of atomic and physical properties. There are various parameters based on this basic electronic configuration. Basic electronic configuration ये है कि बुनियादी तौर पे जो अल्कली मेटल्स हैं ये s ब्लॉक एलिमेंट हैं, और s ब्लॉक एलिमेंट्स मीन दैट दे इन्वॉल्व s ऑर्बिटल फिलिंग, or s orbital is present in the valence shell of these elements, and there is 1 electron in the s orbital. We can describe the physical, atomic and physical properties in terms of atomic radii, number 2 ionic radii, number 3 ionization energy, number 4 electronegativity, number 5 melting points and boiling points, electron affinity, metallic character, electrical conductivity. In other words, that the atomic and physical properties of group 1A can be described by the atomic radii, ionic radii, ionization energy, electronegativity, melting and boiling points, electron affinity, metallic character and the electrical conductivity. This we will explain the physical characters one by one, that how we can explain these factors. First of all, we will describe the atomic radii. Atomic radii is in fact the distance between the valence shell electron and the outermost electron of the atom, if we consider it a spherical. The distance between valence shell or outer shell, the distance between the valence shell electron and nucleus of an atom as considered as spherical is called atomic
radius in terms of one atom and atomic radii in terms of the group elements. So in fact, the atomic radii is the distance between the valence shell electron and nucleus of an atom. Now if we consider lithium Li3, this is the nucleus, 1s2, 2s1. Now this is in fact the atomic radius, that is the valence shell and the nucleus of an atom. Atomic radii increase from top to the bottom of group due to number 1, increase the atomic radii increase from top to bottom of a group 1a due to number 1, increase in the number of shells. जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. This is group 1A. This is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. The atomic number is 3, 11, 19, 37, 55, 87. Now if we move from top to bottom, the atomic radii increase. This is the number of shell increase करते हैं. Number 2, increase in the shielding effect of electrons in the underlying electron in the shells in between valence shell and nucleus. चूँकि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो शेल्स की तादाद है ये इंक्रीज़ करती चली जाती है. जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा इलेक्ट्रॉन का जो साइज़ है वो बढ़ता चला जाता है. शेल बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा और उसका जो रेडियस है ऑटोमेटिकली प्रोग्रेसिवली वो इंक्रीज़ करता चला जाएगा. इसी तरह जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है, जितने वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान शेल की तादाद ज़्यादा होगी, जैसे सीजियम है तो लिथियम और सीजियम के साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क इसलिए है कि लिथियम में नंबर ऑफ़ शेल जो हैं वो कम हैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस के करीब है, लिहाजा वो अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है और न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो कम है. लेकिन सीजियम में चूँकि नंबर ऑफ़ शेल बढ़ जाते हैं और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. जब रिपेल करते हैं तो वैलेंस शेल पे जो न्यूक्लियस की ग्रिप होती है वो वीक पड़ जाती है, जिसकी वजह से रेडियस जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है. सो दिस वाज द एटॉमिक रेडियाई. सिमिलरली इन केस ऑफ आयनिक रेडियाई, व्हाट इज़ आयनिक रेडियाई? के आयन्स आर फॉर्म. आयन्स कब बनते हैं? जब एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या गेन करते हैं. अब क्यों करते हैं कि एलिमेंट ज़्यादातर जो हमारे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं यानी पीरियोडिक टेबल में, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दे आर रिएक्टिव. द नोबल गैसेस दे आर अनरिएक्टिव, दे आर नोबल गैसेस, दे आर इनर्ट. ऑल अदर एलिमेंट्स दे आर रिएक्टिव बिकॉज दे टेंड टू complete their valence shell in the form of duplet or octet. But when atoms gain or lose electron, then the ions are formed. Either the ion may be cation, उस पर प्लस चार्ज हो सकता है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है. अब जाहिर है वो लूज़ भी क्यों कर रहा है कि उसने अपने शेल को, जो इनर शेल है, उसको कंप्लीट करना है. इसी तरह कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसने अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करना है इन द फॉर्म ऑफ डुप्लेट, या वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा जैसे हाइड्रोजन है. इसी तरह जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ताकि उनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो जाए. एंड व्हेन द वैलेंस शेल इज़ कंप्लीटेड द एलिमेंट दे बिकम स्टेबल. सो इन ऑर्डर टू गेट स्टेबलाइज्ड द एटम basically they lose or gain the electron to complete their valence shell. So in case of ionic radii, it is the distance between the nucleus and valence shell electron of an ion. This is the distance between the valence shell and the nucleus of an ion. So for example, if A is the atom, when it loses one electron, get positive charge, they are called cation. And when
they gain electron, they become negative and these are called A9. So पॉजिटिव आयन बनते हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से, नेगेटिव आयन बनते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने से। तो अब अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम, दिस इज़ 281, व्हेन it loses one electron it becomes positive 28. So this electron is when lost, the other electron they are attracted by the nucleus because the number of protons they remain same in the nucleus. So when sodium loses one electron they are left with 10 electron. तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो उसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब पहले 11 इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन थे वो 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब 11 प्रोटॉन जब 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे द डिस्टेंस विल डिक्रीज। सो यू कैन से दैट सोडियम प्लस इज स्मॉलर दैन पेरेंट। सो यू कैन से इन सेंस दैट द केटायंस आर स्मॉलर इन साइज दैन देयर पेरेंट एटम, लाइक दिस कि जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है उसका वैलेंस शेल ख़त्म हो गया, पीछे उसका जो इनर शेल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब उन पे जब प्रोटॉन जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी और इस तरह उसका जो साइज़ है वो श्रिंक कर जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि केटायन जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन से छोटे होते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ क्लोरीन, व्हेन इट्स गेन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स Cl नेगेटिव, दिस इज 7, दिस इज 288, दिस इज 287। सो Cl नेगेटिव इज ग्रेटर दैन Cl parent, that is anions are larger in size than their parent atom। तो लिहाजा अब जैसे क्लोरीन की हम एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और ले लेता है तो पहले इसके 7 थे, अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्रोटॉन उतने ही हैं, शेल चेंज नहीं हुआ लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उसमें इंक्रीज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से उस पर जो न्यूक्लियस की ग्रिप होती है वो पहले से कमज़ोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो शेल थोड़ा सा स्प्रेड करता है और उससे उसका जो आयनिक रेडियस होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयंस छोटे होते हैं पेरेंट से इन साइज़ और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो अपने पेरेंट से बड़े होते हैं। देन नेक्स्ट इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस इज़ व्हाट द minimum energy required to eject electron from the valence shell of 1 mole a gaseous atom to form cation। इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी से मुराद ये है कि वो कम से कम एनर्जी जो किसी एटम के वैलेंस शेल से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक एटम है, इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं और ये प्लस में चेंज हो जाता है। सिमिलरली ये +1 जो है इसको हम मज़ीद आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं जिसको कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, दिस बिकम +2। द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 1A, दैट इज़ फ्रॉम lithium to cesium due to number 1 increase in size, number 2 increase in shielding effect of underlying electrons in shells। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये डिक्रीज़ करती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज़ फ्रॉम लिथियम टू सीजियम ड्यू टू इंक्रीज़ इन साइज़। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डिक्रीज़ करती है। क्यों डिक्रीज़ करती है? इंक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़, जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ करता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है। अब जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतना न्यूक्लियस की जो गिरफ्त होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। जब उसकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ेगी तो वहाँ से उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना, रिमूव करना आसान हो जाता है, लिहाजा उसे हम कम एनर्जी दे के भी वहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे अगर लिथियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हायर है तो फिर सोडियम की उससे कम होगी, फिर पोटाशियम की उससे कम होगी, रुबिडियम की उससे कम होगी और सबसे कम जो होगी वो सीजियम
की सबसे कम होगी। फ्रेंशियम दैट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दिस इज स्टडीड इन दैट वे। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो डिक्रीज़ करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी वो एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें देना पड़ती है, वो कम होती जाती है जैसे जैसे हम इसको ऊपर से नीचे आते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि इंक्रीज़ इन द साइज़ इंक्रीज़ करा जाता है, जिसकी वजह से इसमें बुनियादी तौर पे आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी जो है, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी एटम के न्यूक्लियस से, उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। दैट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इफ़ यू टेक अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मोनो positive ion, this is monopositive ion, then we have to give more energy, because with the removal of electron the size of the atom decreases and the force of nucleus to the valence electron also increases, so we need more and more energy. Therefore you can say that the ionization energy second is greater than first ionization energy. तो ये इसकी रीज़न है कि जब हम टॉप से बॉटम पे आते हैं तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो ns1 इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से इंक्रीज़ करता चला जाता है। देन वी कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज़ द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट अ बॉन्डिंग पेयर of electron towards itself is called electronegativity. The measure of tendency of an atom of an element to attract a bonding pair of electron towards itself, इसको हम कहते हैं electronegativity. The electronegativity decreases from top to bottom. Electronegativity decreases from top to bottom of group 1a elements due to number 1 increase in atomic radius, number 2 decrease in ionization energy। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ये बेसिकली डिक्रीज़ करती है, एक तो इंक्रीज़ ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस और दूसरा डिक्रीज़ इन आयनाइजेशन एनर्जी। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये किसी के एलिमेंट की वो पावर है, वो एक टेंडेंसी है, कैपेबिलिटी है, जिससे वो एक बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, उसको नॉर्मली हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब ये बुनियादी तौर पे टॉप टू बॉटम इसलिए डिक्रीज़ करती है कि इसमें दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो बेटा ये है कि इंक्रीज़ इन एटॉमिक रेडियस, और दूसरा जो है डिक्रीज़ इन। जैसे हम ग्रुप से ऊपर से नीचे आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं और शेल्स बढ़ते जाते हैं। जब शेल बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन की जो उसके लिए अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन है वो कम होती चली जाती है। इस वजह से इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करती है। सिमिलरली आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो रहा है, वैलेंस शेल जो है वो एटम से दूर होता चला जाता है। तो इस वजह से नॉर्मली ये देखा गया है कि फिर ये उसको हमारे लिए ये जो इलेक्ट्रॉन की इसके लिए अट्रैक्शन है वो नहीं रहेगी। द थर्ड इज़ दी हाईएस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की जो बेसिकली सलाहियत होती है वो ज़्यादा होती है। देन दी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर यूजुअली लो for group 1a elements. These decrease from top to bottom of group 1a due to decrease in interatomic interactions, weak van der Waals forces. The decrease in melting points and boiling points is also due to presence of single valence shell electron and increase in atomic radii from top to the bottom of group 1a. सो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं बेसिकली ये एक इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शंस को ज़ाहिर करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये डिक्रीज़ करती जाती है इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन, वज़न
जो उनका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ करता है, जिसको मैंने नीचे डिस्क्राइब कर दिया कि डिक्रीज़ इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ आल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज़ इन द एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ ग्रुप 1 है। तो इस लेकिन ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वैसे भी यूजुअली ये कम होते हैं, और नॉर्मली ये जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये डिक्रीज़ करते हैं फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। Similarly, you can say about the density. The density is also very low due to large atomic sizes, and the density increase in the atomic size from lithium because of the increase in the atomic mass from top to the bottom of the element. In general, their densities they are low, but they generally increase from the density of the elements. ये इंक्रीज़ करती हैं लिथियम से सीज़ियम की तरफ जाते हुए, जैसे जैसे इनका एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। तो नॉर्मली जो डेंसिटी होती है इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो देयर डेंसिटी आल्सो increases. Electron affinity basically we can describe there as they have no ability to attract the electron. Similarly, metallic character that increases from top to bottom. Lithium is not good metal, then sodium again that is not good from potassium, but in general the electropositive character, because their tendency to lose the electron is going to increase. So generally the metallic character increases due to increase in electropositivity because they have the tendency to lose the electron. So their electropositive character is going to increase from top to bottom. So the metallic character also increases from top to bottom, that is from lithium to cesium. Similarly, electrical conductivity, this depends upon the conduction of the availability of the electron, free electron in the valence shell. So as we move from top to bottom, the atomic size increases, the valence shell electron become free from the nucleus grip. Therefore, the electroconductivity also increases from top to the bottom, and this was all about the group 1 element, in fact their atomic and physical properties. तो इसको हमने वन बाय वन डिस्कस किया है इन टर्म्स ऑफ दीज फिज़िकल पैरामीटर्स। तो इंशाल्लाह इसी को हम नेक्स्ट आगे एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।